تو ہم نے 2020 میں 15 سال ان تمام بڑے بڑے اداروں کے ساتھ خدمت کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان تمام بڑے اداروں کو سلوٹ کریں اور اب ان لوگوں کے پاس جائیں گے جو شاید ان بڑے بڑے اداروں میں نہیں جا سکتے، ان بڑے بڑے اداروں میں جا کے نہیں پڑھ سکتے، ان بڑے بڑے اداروں تک رسائی نہیں ہے۔ تو 15 سال ہم نے ان اداروں کے ساتھ خدمت کرنے کے بعد سن 2020 میں یہ فیصلہ کیا کہ 2021 میں ہم تمام لوگوں کے ساتھ جا کے کام کریں گے، چاہے وہ بڑے اداروں کے ہیں، چاہے وہ چھوٹے اداروں کے ہیں، بڑے انسٹیٹیوشنز کے، چھوٹے انسٹیٹیوشنز کے۔ تو ہم نے پھر اپنی ٹیم کو بیٹھ کے سمجھایا کہ ہم نے بہت عرصہ ایک سلیکٹو یا گنے چنے لوگوں کی خدمت کی ہے، اب ہم اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ جہاں بھی خدا کا کوئی بھی بندہ ہمیں بلائے گا خدمت کرنے کے لیے، خواہ وہ 15 آدمی ہوں، 1500 آدمی ہوں یا 15,000 آدمی ہوں، ہم خدا کی خدمت کے لیے تھینک یو ویری مچ اشرف جی دین، خدا آپ کو برکت دے اور مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔ آج ہمارے درمیان ہمارے وائس جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پروفیسر ہیں، تھیولوجسٹ ہیں، لنگسٹ ہیں، ٹیچر ہیں اور اسکالر ہیں، اور خدا ان کو بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے اور مختلف جگہوں پر مختلف سیمنریز میں وہ پڑھا رہے ہیں۔ سابقہ ایف جے بائبل کالج کے پروفیسر ہیں اور اس وقت گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں بھی وہ جاتے ہیں اور وہاں پر پڑھاتے ہیں، اور مختلف بائبل کالجز میں ان کو موقع دیا جاتا ہے مختلف سیمینارز میں، اور اپولوجیٹک سیمینارز میں جو ہے وہ ایک بڑا نام رکھتے ہیں اور ایک بڑی پہچان رکھتے ہیں۔ سو آج ہمارے لیے یہ بڑی عزت کی بات ہے کہ خدا نے موقع دیا تاکہ آج جی، اور پنجاب یونیورسٹی میں وہ ہیبرو پروفیسر ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا بھائی، ہماری قوم کا بیٹا، خدا نے اسے یہ نام دیا کہ وہ پنجاب یونیورسٹی میں عبرانی جو ہے وہ پڑھا سکیں، اور بڑے بڑے جو ہے تعلیم یافتہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے عبرانی سیکھتے ہیں۔ تو یہ خدا کی طرف سے ان کے لیے آنرشپ ہے اور عزت شہرت یہ خدا ان کی طرف سے ہے۔ ہاللیلویا۔ اور میرے لیے آنر یہ ہے کہ یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، کہیں سے بھی لگتے نہیں ہیں چھوٹے لیکن ہیں پھر بھی چھوٹے۔ تو آئیے زوردار تالیوں میں مزاح کیے گئے ہم خدا کے تعلق کو زوردار تالیوں میں ہم نے خوشا پوچھتے ہیں۔ میڈیا والے تھوڑے سائڈ پر رہے تاکہ پیچھے لوگوں کو نظر آئے۔ شکریہ آپ کا۔ عالی جناب بشپ یعقوب پال صاحب، پادری اشرف جیدین صاحب، پادری عاشق صاحب اور پاکستانی کلیسیا کے تمام سورماؤں کو میری طرف سے سلام عرض ہو، اور میں بڑا ہمبل فیل کرتا ہوں جب بھی خدا مجھے موقع دیتا ہے کہ میں خدا کے خادموں کے ساتھ ہم کلام ہو سکوں، اور یہ اس کا فضل ہے کہ پادری اشرف جیدین صاحب نے ہمیں اجازت دی کہ آج ہم صبح آپ کے ساتھ یہاں آئیں اور خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکیں۔ ایک حوالہ پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے، رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات کی تلاوت ہم کرتے ہیں۔ رومیو کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات۔ کوئی بھی آپ میں سے پڑھنے میں مدد کرتا ہے؟
आसिया भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिला कर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा को मालूम करते हो। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। सन 2005 जब मैं गुजरांवाला सेकेंडरी से ग्रेजुएट हुआ, तो उसके बाद मैं जब लाहौर आया तो मुझे सबसे पहले जिस इदारे ने कहा कि आप हमारे साथ आएँ और खिदमत का काम शुरू करें, वो ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी था, जिसे आप OTS के नाम से जानते हैं। मैंने 8 साल उनके साथ खिदमत की। उसके बाद खुदा ने फजल दिया कि पाकिस्तान के तमाम जो टॉप के इदारे हैं उनके साथ में खिदमत कर सकूँ, जिसमें गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी शामिल है, FJ बाइबल कॉलेज शामिल है, और तमाम पाकिस्तान के जितने भी आप टॉप के इदारों के नाम ले सकते हैं, उन सब में खुदा ने मौका दिया कि मैं खुदा की खिदमत को सरंजाम दे सकूं। हमारे खानदान में कोई पादरी नहीं था। हमारे ताया जी पिछले हफ्ते मिले और मुझे पता चला वो मुझे देखने के लिए आए थे, क्योंकि मेरे जो अब्बू थे उन्हें दादाजी ने कहा था कि तेरे खानदान में किसी ने किसी को पादरी बनाना, तो अब्बू ने कहा था कि मेरे दोनों लड़कों को मैं कोशिश करूंगा कि पादरी बने। तो अभी हम लोग छोटे छोटे थे जबकि कहानी है, तो वो तकरीबन 80 साल के हैं। तो वो जब डस्के में मुझे मिले तो वो कहते मैं सिर्फ देखने के लिए आया हूँ कि तू भी पादरी है। तो हमारे लिए बड़ी अजीब बात थी कि हमें से कोई खिदमत में होता, क्योंकि डैडी जो थे वो तो आप जानते हैं कि मैकेनिकल में थे, लेकिन खुदा ने उनको बहुत कलाम की खिदमत दी थी, बहुत सूझबूझ थी उसकी। तो 15 साल हमने खुदा की खिदमत की तमाम बड़े बड़े इदारों के साथ। जब कोरोना आया तो हमें तो कोरोना बहुत माफी करे। सही बात है, मैं सही कह रहा हूँ। आगे जब कहानी चलेगी तो आपको पता चल जाएगी। तो हमने 2020 में 15 साल इन तमाम बड़े बड़े इदारों के साथ खिदमत करने के बाद ये फैसला किया कि हम तमाम बड़े इदारों को सलूट करेंगे और अब उन लोगों के पास जाएंगे जो शायद इन बड़े बड़े इदारों में नहीं जा सकते, इन बड़े बड़े इदारों में जाके नहीं पढ़ सकते, इन बड़े बड़े इदारों तक रसाई नहीं है। क्योंकि पादरी बनना क्या चीज है, किसी दिन आप जाती तौर पे बैठिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कितनी मुश्किल से मैं गुजरांवाला गया था, कितने पापड़ बेलने पड़े थे। कमोबेश 97 से लेके 2002 तक 5 साल तक सिर्फ बैठ के इंतजार करना पड़ा था कि किसी इदारे में दाखिला मिल जाए। आज तो खुदा का इतना फजल है कि हम जिसको कहते हैं कि ये बच्चा रख ले तो वो रख ही लेते, ठीक है ना। तो जब हमें रखना था तो कोई रखने वाले नहीं थे मिले, क्योंकि जहाँ कहते थे वो कहते हैं ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो 15 साल हमने इन इदारों के साथ खिदमत करने के बाद सन 2020 में ये फैसला किया कि 2021 में हम तमाम लोगों के साथ जाके काम करेंगे, चाहे वो बड़े इदारों के हैं, चाहे वो छोटे इदारों के हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस के, छोटे इंस्टीट्यूशंस के। तो हमने फिर अपनी टीम को बैठ के समझाया कि हमने बहुत अरसा एक सिलेक्टिव या गिने चुने लोगों की खिदमत की है, अब हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो फिर हमने कोशिश की कि जहां भी किसी खादम ने हमें कहा कि आप आएंगे, तो हमने कहा जी जरूर आएंगे। वरना पहले ही होता था कि हम बहाना बना देते थे, ये जी हमारे लेक्चर्स हैं FGA में या गुजरांवाला में या BTC में या कहीं। तो फिर हमने तमाम जो बहाने थे उनको ख़त्म कर दिए और अब हमने कहा कि सन 2021 के बाद जहाँ भी खुदा का कोई भी बंदा हमें बुलाएगा खिदमत करने के लिए, हाँ 15 आदमी हो, 1500 आदमी हो या 15,000 आदमी हो, हम खुदा की खिदमत के लिए। तो ये एक छोटा सा तारुफ है और बाकी हमारे जो बुजुर्ग पादरी साहब, पादरी आसिफ जॉन गिल साहब, उन्होंने आपको बताया छोटी सी खिदमत है मेरी, और बाकी खिदमत के बारे में आके हम लोग बात करेंगे। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो निकाल लें, मैं टीचर हूँ तो मेरी मजबूरी होती है कि अगर कोई मेरे सामने लिखे ना तो मुझे लगता है कि वो मुझे अवॉइड कर रहा है, तो इसलिए आप कॉपी पेंसिल निकाल लें और फिर हम लोग शुरू करेंगे। एक छोटी सी दुआ करें। बाप तेरे शुक्रगुजार है कि तूने हमें फज़ल बख्शा कि तेरे हुजूर झुक सके। खुदा पाक लो तू जो दूसरा मददगार है, हमारी मदद कर, सहायता कर, बख्श दे कि अपनी जिंदगी में
तेरे बेटे मसीह खुदावंद को जवाब दे सके। तेरे खुदाम जब तेरे कलाम को सुनते हैं तो अपने कलाम को पेश करने में तू मुयस्सर हो, अपने कलाम को लोगों तक पहुंचा ताकि लोग तेरे कलाम को सुने, उनकी जिंदगियों में एक नई चहल, एक नई सिमत, एक नया जोश और जज्बा भर सके। ये सब कुछ मसीह खुदावंद के नाम में मांगते हैं। अच्छा, मैं ना आज सुबह एक लफ्ज को पढ़ के बड़ा हैरान रह गया। हम जब पिछली दफा यहाँ जमा हुए थे तो केक कटिंग सेरेमनी थी। आप में से कौन कौन उसमें था? आप में से याद है मैंने उस दिन कौन से कपड़े पहने थे? जी, शलवार की पाई थी। वेरी नाइस। आज मैंने पैंट कोट करना है, ठीक है ना। हो सकता है अगली दफा जब आऊं तो फिर भी शलवार पीस में आ जाऊं, क्योंकि जब मैंने कुछ नहीं करना होता तो मैं शलवार पीस पहनता हूँ, लेकिन जब कोई प्रेजेंटेशन होती है फिर हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर असलम जय साहब ने सिखाया था यू ऑलवेज बी इन अ प्रेजेंटेबल लुक, ठीक है ना। तो हम जब कुछ प्रीच करना होता तो फिर पूरे स्टाइल में आते हैं, तो जब नहीं कुछ करना होता तो फिर शलवार पीस में आ जाते हैं। शलवार पीस पहनना या पैंट कोट पहनना इज अ चेंज, है ना। ये चेंज है, और चेंज की ये खामी है कि वो रिवर्स हो जाता है। लेकिन बाइबल जो है वो चेंज की बात नहीं करता। मैं हैरान हो गया आज सुबह जब मैंने लफ्ज चेंज सर्च किया तो मैं परेशान हो गया कि चेंज लफ्ज जहां भी बाइबल में आया है उसमें यहां वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल हुआ। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जब तितली जो होती है वो पैदा होती है ना, आपको पता है उसके कवर होता है, एक्सा होता है, जैसे हम कोकून कहते हैं, उसके बीच में उससे पहले वो एक होती है, क्या कहते हैं जिसको जी सुंडी सी, है ना, सुंडी कहते हैं, लार्वा कहते हैं। आप लोग तो बहुत कुछ जानते हैं। तो लार्वे से जब वो बाहर निकलती है, उसके पर निकलते हैं तो उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है ना। ये साइंसी नाम है उसका। मैंने वो लफ्ज जब यहाँ पढ़ा मैं हैरान रह गया। मैं कहा ये तो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन की कार, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी तब्दीली को कहते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकती। चेंज रिवर्स हो सकता है। आज मैं आपको पैंट कोट में नजर आ रहा हूं, कल हो सकता है पैंट शर्ट में नजर आऊं, परसों हो सकता है फिर शलवार कमीज में नजर आऊं। ये चेंज है, चेंज है, चेंज रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर एक दफा लार्वा बन जाए ना तितली, या किसी बीज में से दो पत्तियां निकल आए, वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो बाइबल जब भी बात करती है ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है, और ये बात सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन की है। अक्ल नई हो जाने से शक्ल बदलते जाए, ठीक है ना। विजिबल चेंज, विजिबल चेंज, विजिबल चेंज। टाइम मेरे पास काफी ज्यादा, इसलिए हम बड़े मजे मजे से चलेंगे। 5 सवाल है आपसे, और ये आपने सारी उम्र सिर्फ अपने आप से नहीं पूछने, दूसरों से भी पूछने। और ये सवाल जो है आपकी जिंदगी को कुछ करने पे मजबूर करेंगे। आपको पता है मसीह खुदावन के बारे में, जब भी सुबह का वक्त आया तो वो कहीं पहाड़ पे से उतर रहा होता था, जब रात का वक्त आया तो पहाड़ पे जा रहा होता था। हर सुबह का यही शेड्यूल लगती है, और जब सुबह होती है मसीह खुदावन कहता है चलो भी चलिए, निकलो, है ना, रेडी, तैयार, ठीक है ना। क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन, आप आज सुबह क्यों उठे, या आप सुबह क्यों उठते हैं? ये 5 सवाल में से पहला सवाल है। इस सवाल का अगर हमने सही तरह जवाब दे दिया अपने आप को, और इस सवाल का सही जवाब हमने ले लिया अगर दुनिया से, तो फिर सुबह उठ के आपको सोचना नहीं पड़ेगा यार रात की करना सी। जब आप सुबह उठेंगे आपका दिमाग आपको कहेगा कि तुझे ये काम करना है, उठ, और आप उठेंगे और उस काम को करेंगे। आज सुबह क्यों उठे आप? फेलोशिप मीटिंग में आ सकते। शाबाश भाई साहब, आपका क्या नाम है? अशरफ गिल साहब। वाह जी, कितना बगैर गाल नहीं ना पड़ा। जी सर, जी।
फेलोशिप तो थी ही, लेकिन उसके अलावा ये जरूरी था कि हर सुबह कुछ नया करने के लिए। गुड। एनीबॉडी एल्स? अच्छा, आप में से किसी का जवाब गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूं, इसलिए जवाब देने से पीछे ना हटे, ठीक है ना। हमने 8 साल ओडीएस में काम किया, ओडीएस में हम ये सिखाते रहे हैं और इसको इंप्लीमेंट करवाते रहे हैं कि 40% हमने बोले, 60% स्टूडेंट्स ने बोले, तो इसलिए आप बोल दें, ठीक है ना, कि किसी पे हंसेगा ना ताली बजाएगा, ठीक है ना जी। प्लीज। जब हम रात को सोए जी, अगले दिन की हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि Good. सुबह उठते सारे हमने क्या करना है। नहीं, ये तो कलेक्टिव बात होगी ना, हम तो पर्सनल बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं क्यों उठा? मेरे बेटे ने मुझे कहा पापा उठ जाओ, टाइम हो गया, मैंने कॉलेज जाना, पैसे निकालो, ठीक है ना। ये मेरी मोटिवेशन हो सकती है। जी भाई साहब। हमारे जो रात को हम प्लान करके सोते हैं, हमें वो सुबह जल्दी उठने का हमें जोर देते हैं कि हम जल्दी से उठें और अपने जो सुबह के प्लान हैं उनको हम कार्य खास में लाएं। एनीबॉडी एल्स? इधर से कोई नहीं बोला अभी तक, हालांकि इतने बड़े बड़े पादरी साहबान बैठे हुए हैं यहाँ। हाँ जी, रोजमर्रा के तमाम मामला को सर अंजाम दे सके, रोजमर्रा के मामलात को सर अंजाम दे सके। एनीबॉडी एल्स? रात को डेली हम 1 बजे सोते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो आ करके कुछ न्यूज वगैरह सुन के बच्चों के साथ पोते पोतियाँ सब इकट्ठे हो जाते हैं जी। तो मैंने उन्हें कहा भी जाए, मैंने सुबह जल्दी जाना है, कह रहे नहीं वो टाइम तुम्हारा वही है। सो गए। सुबह सवेरे मैं अबाउट 6:30 पिकअप हुआ, वाह जी, उठा। मिसेज मुझे कहती है कि क्या बात है। मैंने कहा मैंने 10 बजे पास्टर अशरफ जे डी की हमारी जो मंथली फेलोशिप होती है, मैंने वहां पे जाना है। गुड। और रात को मैं टेलर के पास गया, मैंने कहा यार मेरी पैंट की ये जिप खराब हो गई है। वो कह रहा आप आराम से चले जाए। वो 11:30 बजे रात को मुझे पैंट वापस कर दिया। और सुबह सवेरे में उठा, कपड़े इस्त्री किए, सब कुछ किया। और मेरे साथ पास्टर है, पास्टर आरिफ लाल साहब, वो भी यहाँ पर है। उन्होंने कहा चले जी चलते हैं। तो ये मेरी आज की मसरूफियात थी। और शाम को भी नहीं, बस सुबह की, अभी सुबह तक रहना है, शाम तक मैंने लेके जाना है आप सबको। हाँ जी, आपको अगर आप चाहते हैं ना कि आप लोगों की जिंदगी में उतर जाएं, तो ये 5 सवालों के जवाब आपको हर बंदे से पूछने चाहिए। उसके साथ आपका ऐसा कनेक्शन जुड़ जाएगा, ठीक है। कल 2 लड़कियां मेरे घर में आई और उनकी कोई प्रॉब्लम थी, उनकी कोई वो मंगेतर वगैरह की मंगनी टूट गई, ये हो गया वो हो गया। तो ना उस अदारे में मैं पढ़ाता हूँ, ना उस अदारे से अब मेरा कोई ताल्लुक रह चुका है और 1 साल से ज्यादा हो गया उस अदारे में मैं जाता भी नहीं। लेकिन वो मेरे पास आए, मेरे पास क्या नहीं है, ना मैं उसका बाप हूँ ना भाई हूँ, ठीक है ना ही मैं उसका कोई मसला हल करने वाला हूँ। लेकिन कुछ तो ऐसा था जो गहरा ताल्लुक जुड़ा हुआ था, बियॉन्ड लॉजिक तो है ना। देखिए जी, आप यहाँ पर आया, अशरफ साहब के साथ आपका ताल्लुक है, ये मंतक है। लेकिन यहां से आपके साथ किसी के साथ ऐसा ताल्लुक जुड़ जाए जो मंतक से परे हो, वो कमाल होगा। अपने मतलब के तहत तो हम हर बंदे की खुशामद कर लेते हैं ना, हर बंदे को उस्ताद भी मान लेते हैं, बड़ी बड़ी तारीफें भी कर लेते हैं। लेकिन मंतक से जब हम इन चीजों से आगे जाके किसी के साथ ताल्लुक कायम करते हैं, वो बहुत जरूरी है। इसलिए आपको ये सवाल अपने आप से आज पूछना चाहिए। अगर आप रोजमर्रा के मामूलात पूरा करने के लिए उठ रहे हैं, तो ये क्या कमाल बात हुई। वो तो सभी उठते हैं। अभी किसी ने वॉशरूम जाना, उसने उठना ही है तो जाना ना। हाँ जी, किसी ने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, उसने उठना ही है तो जाना ना। हाँ जी, लेकिन अगर आपको कभी मौका ना दिया जाए उठने का, तो आपके पास कोई लॉजिक ही नहीं उठने के लिए, कोई वजह ही नहीं उठने के लिए, कोई सबब ही नहीं उठने के लिए, ठीक है जी। आपने हाथ खड़ा किया। जी मैंने थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, तमाम खदाम के लिए बहुत ज़रूरी था। खुदा के खदाम प्रेजेंस में होते हैं, खुदा की हजूरी में। और यहाँ पे रूह और बदन की बात है। जब उसकी प्रेजेंस में हम रेस्ट पे जाते हैं तो हमारे अंदर जो पैशन होता है उसे लिए हुए सो जाते हैं। और सुबह जब उठते हैं तो फिर रूह की बेदारी से
पाक रूह हमें अलर्ट करता है, बदन नुमाइंदगी करता है जिस काम को हमने अपने अंदर लिया होता है। चूंकि हम एक जिम्मेदार और बड़े खेत में काम करने वाले सब होते हैं, हम उस टास्क को लेकर, उस फोकस को लेकर अलर्ट होते हैं, रेडी होते हैं, उस जगह पर पहुंचकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जो भूख और प्यास होती है उसे रिसीव करते हैं, असेर सूदा होते हैं, फिर दूसरों के लिए भी बरकत का सबब। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। शाबाश, बैठे तशरीफ रखें, बात बिल्कुल दुरुस्त है और हम इस बात को गलत नहीं कह रहे, लेकिन हर एक के पास उठने का मकसद फर्क होना चाहिए। मेरी जिंदगी आपसे बिल्कुल फर्क है। आप में से कितने हैं जिनके पास चर्चेज हैं? चर्चेज वाले पादरी कितने हैं? अब मेरे पास चर्च नहीं है, ठीक है ना। मैं तो संडे को उठता हूं तो मैं सोचता हूं कौन सी चर्च जाना है, लेकिन आप में से ज्यादातर जिनके चर्चेज है वो ये नहीं सोच सकते। तो मेरे उठने का मकसद, आपके उठने का मकसद, एक ऐसे बनने का मकसद जो किसी चैनल के ऊपर खिदमत कर रहे हैं, यहाँ जो सिंगर हैं, ठीक है ना, इन सबके उठने का मकसद फर्क होगा। हम सबका एक मकसद हो नहीं सकता, ठीक है ना। अल्टीमेटली खुदा का वो हमारी रहनुमाई करता है। हम रात को उसकी हुजूरी में सोते हैं, सुबह को उसकी हुजूरी में उठते हैं, और सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन आपके पास क्या जाती और शख्सी वजह, ठीक है ना। अभी मैं सुन रहा था इनका, वो बता रहे थे कि मुझे ऐसे ऐसे टीबी हो गया, खुदा ने शिफा दे दी। मुझे अपनी जिंदगी का एक वाकया याद आ गया। हमें अस्पताल से निकाल दिया था और उन्हें कहा था कि ऐसी को काट लिया मुंडे में, ऐसी केयर करो। सन 1997 में ना गैस फैल गई थी, क्लोरीन गैस गड़ी शॉप में, 155 लोग मरे थे, शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो। तो हम वहाँ रेलवे हॉस्पिटल में थे, तो मुझे ना उन्होंने फर्क कर दिया। उन्होंने कहा कि मंडे को ना काटने जाके अपना ऐसी केयर करो, ये ठीक हो जाए। आपको पता है जुमले का मतलब क्या होता है ना, फर्क। वो मुझे लेके जा रहे थे, स्ट्रेचर पर डाला हुआ था। अब उधर अस्पताल पहुंचे तो वो कहते हैं आप खड़े हो और पूरे वार्ड का चक्कर लगाएं। तो मैं उसके वो पंजाबी के गले पड़ गए। मैं कहा जी 3 दिन से मैं सोया नहीं, 3 दिन से मैं बैठा हूँ, मैं ऊँघता था और ऑक्सीजन जब तक लगी रहती थी सांस ठीक रहता था, जब उतरती थी सांस खत्म हो जाता था। तो लगातार ऑक्सीजन हमें चेंज करती रहता, वो बार बार ऑक्सीजन लगानी पड़ती थी, ठीक है ना। तो उसने मुझे कहा कि ले जाए। पापा ने कहा कहाँ लेके जाए? पादरी आसफ साहब ने कहा कि सर्विसेज हॉस्पिटल में हमारे कुछ अजीज है, वहाँ लें। तो सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचे, वो कहते हैं आप जरा इस जो है ना हमारा ये पूरा वार्ड इसका चक्कर लगाए। हमने कहा वो कैसे लगा सकते हैं, 3 दिन हो गए हम सोए नहीं। तो उसने मुझे घड़ी दिखाई। तो जब मैं वहां पहुंचा था तो 12 का टाइम था। जब घड़ी दिखाई तो 4:30 का टाइम था। और एक ड्रग होती है जिसको लाइफ सेविंग ड्रग कहते हैं, आपने सिर्फ मेडिकल किया शायद उनको पता हो। बंदा जब मरने वाला होता है ना तो उसको एक फाइनली टीका लगाते हैं 2.5 घंटे जिंदा रखने के लिए। वो 3 दफा टीका मुझे लगा, ठीक है। और जब मैं हॉस्पिटल में था, डॉक्टर ने कहा उठ के फिर उठो। मैं जब घड़ी देखी तो टाइम 4:30 हो गया था। तो मैं तो 4.5 घंटे किधर गया, 12 बजे तक तो मुझे पता है मैं आया। तो फिर मेरे ज़हन में आया कि शायद 4.5 घंटे में सो गया। तो मैंने उस वार्ड के चक्कर लगाया। उसके बाद वो मेरे पापा को कहता है ला जो तुसी मुंडे नूं वहम छुपाया है, ठीक है। तो मैं डर के वहां रहा। डॉक्टर कह रहा था ले मुंडे नूं वहम है क्या, मुंडे को कुछ नहीं, ठीक है ना। हुआ पता क्या था, जब मैं स्ट्रेचर पर था ना तो 1 या 2 लम्हों के लिए या सेकंड्स के लिए कहने को मुझे आसमान नजर आया। तो मैंने खुदा को कड़ी लगाई। मैं कहा मैं मर गया, तेरा काम कौन करेगा। अब वो जब सोचते हैं ना तो वो मतलब दिमाग खुद कबूल नहीं करता है कैसी नॉनसेंस बात कर दी। लेकिन उसने नॉनसेंस भी सुन ली। क्या बात, ये हमारे खुदा कमाल है, वो हमारी नॉनसेंस भी सुन लेता, ठीक है जी। और अभी आपके सामने खड़े, ठीक है। तो ये खुदा का फैसला है। लेकिन बात फिर वही है, आप सुबह उठे क्यों? अगर आप इजाजत है तो मैं बताऊं मैं कैसे उठ रहा। सबसे पहले जी प्लीज। सब लोगों ने अपने अपने सोच के मुताबिक जवाब दिए, सबके जवाब ठीक थे। लेकिन जो मेरे दिल पे बोझ है, जो मैं समझ रखता हूँ, अगर खुदा चाहता है तो हम सुबह उठते हैं। हमारी ज़िंदगी में काम तो हमारे जो बड़े वो काम को ख़त्म करते करते इस दुनिया से चले गए, वो काम को ख़त्म नहीं कर सके। काम तो हमने करना है,
क्योंकि खुदा ने बाबे आदम को ये कहा था कि तू अपने खून पसीने की कमाई की रोटी खाएगा, तो वो काम तो हमारा जो कर्म है, तो हम इसीलिए उठते हैं कि हमारा खुदा चाहता है। गुड, शाबाश। तो ठीक है। हाँ जी, जी सर। मैं समझता हूँ कि ना मेरी प्लानिंग है ना मेरे मंसूबे हैं, ये खुदा का मौजूदा, खुदा का करम और तरस है कि आप और मैं सुबह उठ पड़ते हैं, आँख खुल जाती। क्या बात। हाँ जी, जी जी प्लीज। हर रोज खुदा के अपने बदन से खुदा के जलाल को जाहिर करें। गुड, शाबाश। जी जी गिल साहब। दाऊद का बंदा दाऊद कहता है, मैं जाग उठते ही सुबह तुझे अपने साथ पाता हूँ। क्या बात। सो मेरा ईमान है कि खुदा में हर रोज इसलिए उठाकर हम उठते हैं कि अपने बाप के साथ मुलाकात करें और उसके मकसद को अपनी जिंदगी से निकालें। ठीक है, प्लीज तशरीफ रखें। जी विशल साहब। नहीं नहीं रात को 11 बजे चाय पी रहा था और सूफी दुआ कर रहा था। क्या बात। पादरी साहब के लिए, सारी कलीसिया के लिए, इन तमाम खादमों के लिए, क्या सूफी तौर पर आपके लिए, प्रेज द लॉर्ड, मीटिंग लीड करने वाले के लिए। क्या बात। खुदावंद सुबह जो दोनों खादम खिदमत करेंगे, उनको अपनी बरकत के साथ, अपने जलाल के साथ, कुदरत के साथ इस्तेमाल। क्या नहीं, आप सुबह उठे क्यों? तो फिर राउंड किया, Very फिर दुआ nice. की, बहुत आला, राउंड बहुत किया, आला। फिर दुआ की, बहुत आला। राउंड किया, फिर दुआ की। क्या बात। आज के प्रोग्राम के क्या बात है। विशल साहब तशरीफ रखिए। देखिए जी, बात पता क्या है, हम खुदा की साइड की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो ठीक है, वो आप सबकी तारीफ ठीक है, किसी की भी गलत नहीं, ठीक है ना, लेकिन मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। खुदा ने आपको उठाना है, उसने उठाया। खुदा ने आपको मौका देना, उसने मौका दिया, ठीक है ना, उसने आपको सांस दिया, आप उसका, उसने आपको आज का एक और दिन दिया, ठीक है ना, क्या पता कल हम में से भी ना हो, ठीक है ना, ये भी तो हो सकता है ना, क्या पता आज शाम तक हम में से भी ना हो, ये सब ठीक है, लेकिन व्हाट इज योर पर्सनल मोटिवेशन? आपको किसी जगह जाना होता है, आपको कन्वेंशन पे बुलाया जाता है जी, आप मसल को ठीक करवाते हैं, उस पर मसाज करवाते हैं, मालिश करवाते हैं, तेल मलवाते हैं, ताकि आपका जो पट्टा है वो ठीक हो जाए, ताकि आप उस काम को कर सके जिस काम के लिए आपको आज बुलाया गया, ठीक है ना, आप उस काम को नहीं छोड़ सकते। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, आपकी पर्सनल मोटिवेशन क्या है, और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और आप यकीन मानिए कि अगर आपके अंदर प्लान हो ना, तो कभी कभी आपको सुबह सुबह झटका लगा, जैसे कोई पकड़ के आपको कहता है उठ। क्यों? क्योंकि आप एक बड़ी पावरफुल सोच के साथ, जो मसीह खुदावंद की जिंदगी में हमें दिखाई देती है, वो जब भी सुबह का सीन आएगा आपके सामने, आप उसे हमेशा रेडी पाएंगे। चलो, क्यों? क्योंकि उसके पास मकसद है सुबह उठने। आपके पास भी मकसद होंगे, लेकिन उन मकसद को पॉलिश करने की जरूरत है, इन मकासद को लोगों की जिंदगी से तलाश करने की जरूरत है। हम आजकल काम करते हैं जत्थों पे, मैं उसको पसंद नहीं करता, लेकिन हमारी मसीहियत में आजकल वो लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, क्राउड पे। क्राउड पे काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी एक बंदे पे कर ले वो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो एक बंदा अगर उठ गया तो हो सकता है कई हजारों के क्राउड को वो मोटिवेट कर दे, जिंदगी बदल दे, उनकी जिंदगी में तब्दीली आ जाए और लोग निजात पाएं और खुदा उनका बड़ा काम करे। इसलिए क्राउड में काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी एक बंदे की जिंदगी में बात करना, उस काम करना उससे भी ज्यादा फलदार साबित हो सकता है। पहली चीज जो आपकी खिदमत में अर्ज की वो ये थी कि आप सुबह क्यों उठे? मैं क्यों उठा? बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, मुझे उनकी परेशानी के लिए उनकी मदद करनी। बहुत सारे लोग हैं जिनके सवालात हैं जो उन्होंने मुझे भेजे कि उनका जवाब दूं, मुझे उनका जवाब देना। मुझे मरने से पहले इस दुनिया की तारीख के ऊपर एक मोहर लगा के जाना, ठीक है ना। इतनी पावरफुल मोटिवेशन जब आपके अंदर होगी ना, कि आज से 100 साल बाद जब जिक्र होगा ना 2021 का, तो उसमें आपका नाम जरूर आना चाहिए। अगर आपका नाम नहीं आता तो फिर मसला है ना, मसला। एक बंदे ने बड़ी खतरनाक बात की थी, उसने कहा था कि अगर आप किसी फील्ड में दाखिल होते हैं
اور اس فیلڈ کے پہلے 5 یا 7 لوگوں میں آپ کا ذکر نہیں نہ ہوتا تو آپ کا اس فیلڈ میں کوئی کردار نہیں, کوئی مقام نہیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کسی فیلڈ میں گئے اور اس فیلڈ کے جو خدا ہے یا ٹاپ پہ جو بندہ بیٹھا ہو اگر وہ آپ کو ڈسکس کرے نا تو آپ سمجھے کہ آپ ٹاپ پہ. تو ہمیں صبح اٹھنا ہے کیونکہ ہمیں اس دنیا میں اس کی تاریخ کے اوپر اپنے نام کی مہر کر کے جانا. اور 4 5 6 لاتوں والے لوگ نہیں تھے, آپ کی طرح میری طرح سادہ سے انسان تھے.